دنیا میں ایسا کوئی انسان آپ نے دیکھا ہے جو دنیا میں آیا نہیں ہو مگر اس کے حسن و جمال کا بیان ہو رہا ہو؟ دنیا میں کوئی ایسا ویکتی آپ نے دیکھا جو آیا نہیں ہو مگر اس کی سیرت اور کردار و کریکٹر کو بیان کیا جا رہا ہو؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا آیا نہیں ہو مگر لوگ اس کے ماننے والے ہو گئے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا، زمانے کا دستور یہی ہے، انسان آتا پہلے ہے، اس کی خوبصورتی کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، اس کے کردار و کریکٹر کو بیان بعد میں کیا جاتا ہے۔ مگر یہ آمنہ کے لال ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ حضرت آدم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ نبی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اپنی امتی کو بتا رہے ہیں آنے والے نبی مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، بڑے حسین و جمیل ہوں گے، انگلی کا اشارہ کریں گے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے گا، اشارہ کریں گے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، بازاروں میں گھومنے والے نہیں ہوں گے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ یہ سارا پیغام نبی کی آمد سے پہلے انبیاء علیہ السلام دے رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اے میری قوم کے شہزادوں، یاد رکھنا دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لے آئے، مگر کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت آدم آئے نہیں ہو اور لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہو، حضرت ابراہیم آئے نہیں ہو لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہو، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ آئے نہیں ہو لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہو۔ مگر میرے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے کہ نبی ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہے، زمانہ نبی کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی نبی کے نام خط لکھ رہا ہے، کوئی نبی کی آمد کی خوشی میں مکان بنا رہا ہے، کوئی اپنی نسلوں کو وصیت کر رہا ہے، پادری گرجا گھروں میں اپنے شاگردوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ جب وہ نبی آ جائے تو تم اس نبی سے دل لگا لینا، اس نبی کے ماننے والا بن جانا۔ ظاہر سی بات ہے، یاد رکھیے گا پوری زندگی، اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کسی کو یاد کب رکھتا ہے؟ انسان کسی کو یاد تب رکھتا ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ کی ضرورت نہیں ہو میں آپ کو یاد کر لوں۔ میری ضرورت تھی، قاری اسرائیل صاحب نے یاد کیا۔ جب تک باپ کی ضرورت بیٹا یاد کرتا ہے، جب تک دادا کی ضرورت پوتا یاد کرتا ہے، جب تک بھائی کی ضرورت بھائی یاد کرتا ہے۔ ضرورت ختم ہو گئی، یاد ختم ہو گئی، مگر خدا نے مصطفیٰ جان رحمت کو ساری کائنات کی ضرورت بنا کر کے بھیجا۔ اے لوگوں یاد رکھنا، ہم نے انسان سب کو بنایا ہے، ڈاکٹر بھی انسان ہے، انجینئر بھی انسان ہے، پروفیسر بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، عالم مولانا بھی انسان ہے۔ میں نے انسان سب کو بنایا ہے، مگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ صاحب نبی کی ضرورت کہاں نہیں ہے؟ اے لوگوں خدا نے نبی کو ایسا بنایا، چلنا ہو نبی سے سیکھو، بولنا ہو نبی سے سیکھو، کھانا ہو طریقہ نبی سے سیکھو، سونا ہو طریقہ نبی سے سیکھو۔ سماج میں اچھا ویکتی اور انسان بننا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اوت العلم درجات، جو پڑھے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا۔ یا رسول اللہ کب تک پڑھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک۔ اب مجھے ڈھر کر کہنے دو، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے کیا جو کہہ دے نبی میری ضرورت نہیں ہے؟ سلطان رضا کہنا چاہے گا، اے میری قوم کے شہزادوں، نبی پیدا ہوئے 20 اپریل 571 عیسوی کو، مگر آج 2024 چل رہا ہے۔ بتاؤ 1450 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، مگر کوئی دن ایسا بتاؤ جس دن نبی کے نام کے چرچے نہیں ہوتے، نہیں لیا جاتا ہے۔ صاحب کسی کی یاد ایک دن منائی جاتی ہے، کسی کے چرچے ایک دن ہوتے ہیں، مگر یہ آمنہ کے لال ہے۔ صبح کو اٹھو گے نبی کا نام خدا کے نام کے ساتھ لیا جائے گا، شام کو دیکھو گے نبی کے نام کے خدا کے نام کے ساتھ نبی کا نام لیا جائے گا۔ اس لیے میں
आपसे कहना चाहूंगा साहब याद रखना ये नबी है नबी, याद रखना ये नबी सिर्फ एक जहान की जरूरत नहीं है। अंबिया से पूछो, कहते हैं आलम अरवाह में मेरी जरूरत के नाम मुस्तफा है। दुनिया वालों से पूछो तो कुरान कहता है तुम दुनिया में कामयाबी और कामरानी चाहते हो तो आमिना के लाल की पैरवी करो। अब सरा साहब इंसान की जिंदगी की सांसें टूट गई, अब कब्र की आगोश में जा रहा है। याद रखना, याद रखना, कुरान कहता है कब्र में भी कोई और काम नहीं आएगा, ये कब्र में मेरा हबीब काम आएगा, कब्र में मेरा मुस्तफा काम आएगा। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को, जो कब्र का अंधेरी कब्र को मुनव्वर कर दे उसे मुस्तफा कहते हैं। अब इंसान कब्र से उठेगा, मैदाने महशर में हाजिर होगा तो आला हजरत कहते हैं फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। अब मुझे ढल कर कहने दो, जो आलम अरवाह में काम आए उसे मुस्तफा कहते हैं, जो आलम अजसाम में काम आए उसे मुस्तफा कहते हैं, जो आलम कब्र में काम आए उसे मुस्तफा कहते हैं, जो आलम महशर में काम आए उसे मुस्तफा कहते हैं। तो जमाने को नबी ने, तभी तो जमाने को नबी ने दर्श दिया। दुनिया वालों याद रखना तेरे नबी के आने का मकसद ये नहीं है जो तुम कर रहे हो, तेरे नबी के आने का मकसद ये है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत सिखाए। अब साहब ये आने वाले नबी आ रहे हैं क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्या सिर्फ एक खास कबीले के लिए, क्या सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए? तो कुरान कहता है नहीं, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो तुम दुनिया में जितने इंसान हो, ऐ इंसान हो तुम सब की तरफ मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ। अब साहब याद रखिएगा नबी सब की तरफ आए हैं, इसलिए औरतों के भी रसूल, मर्दों के भी रसूल, क्रिश्चियनों के भी रसूल, ईसाइयों के भी रसूल, मगर फर्क ये है जो उम्मत ईमान ले आई ये उम्मत इजाबत है, जो ईमान नहीं लाई वो उम्मत दावत है। इसलिए उम्मत तो दोनों है, इसलिए नबी की जिंदगी एक खास कम्युनिटी के लिए नहीं है, नबी की जिंदगी खास एक तबके के लिए नहीं है। आज हम गुफ्तगू करेंगे नबी की जिंदगी पर। आज समाज में नबी की आमद से पहले समाज कितना बिगड़ा हुआ था, कोई शराब खाने में है, कोई जुआ खाने में है, कोई साहब जना का बाजार गर्म करके बैठा है। हालात इतने अबतर थे, एक बाप अपने हाथों से बेटी को जिंदा दफन कर देता था, बाप के मरने के बाद बेटा अपनी माँ को नौकरानी बना करके रख लेता था। हालात इतने बिगड़े हुए थे, भाई बहन को बहन मानने के लिए तैयार नहीं था। इंसानों की मंडियां लगती थी, जानवर के बदले में इंसान बेचे जाते थे। भाई भाई का दुश्मन था, कबीला कबीले का दुश्मन था। लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार रहते थे। शराब की पार्टियां होती थी, जुए का बाजार आम था। एक खुदा के बजाय करोड़ों माबूदाने बातिला की इबादत और परस्तिश होती थी। ऐसे बिगड़े हुए माहौल को, ऐसे बिगड़े हुए माहौल को अच्छा बनाने के लिए अल्लाह ने जिस इंसान को इस जमीन पर भेजा उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नबी तशरीफ ला रहे हैं, हजरत साहब नबी तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा आमिना खातून कहती है जब आका मेरे आंगन में आ रहे थे तो चांद पहले से आ गया था, तारे पहले से आ गए थे, सितारे पहले से आ गए थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत शिफा कहती है हम नबी के आंगन में बच बच कर चलते, कहीं चांद तारों से टकरा न जाए, कहीं सितारों से टकरा न जाए। अल्लाह अल्लाह। साहिबों याद रखना, साइंटिस्ट कहते हैं चांद जमीन से बड़ा है, साइंटिस्ट कहते हैं तारे जमीन से बड़े हैं, मगर मैंने कहा तारों क्या बात है, तुम सिमट कर आज आमिना के आंगन में आ गए हो। तारे
کہتے ہیں ہاں ہاں ہم کیوں نہیں آئے؟ اگر یہ نور والا نہ ہوتا تو ہمیں روشنی کون دیتا؟ اگر یہ نور والا نہ ہوتا تو ہمیں چاندنی کون دیتا؟ تبھی تو میرے امام نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب ذرا ٹھہریے گا آگے، اس لیے دنیا میں کوئی ایسی شے ہے نہیں جو خدا سے کچھ ڈائریکٹ لے سکے، ہے نا؟ ایک نقطے کی بات سن لیجیے پھر تقریر ہوگی۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ڈائریکٹ لے سکے، اس لیے خدا نے سب سے پہلے نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ لو تھا، نہ قلم تھا، نہ سورج تھا، نہ شجر و حجر تھے، نہ جن و بشر تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جن تھے، نہ پری تھی، کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ تو جب صرف خدا تھا تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، اور پھر نبی کے نور سے سورج بنا، چاند بنا، لو بنا، قلم بنا، جن بنے، بشر بنے، ساری کائنات بنی۔ کیوں؟ محبوب سب کو بعد میں بناؤں گا، پہلے تیرے نور کو بناؤں گا، اور تیرے نور سے ساری کائنات کو بناؤں گا، تاکہ زمین پہ دیکھوں تو بھی محبوب کا جلوہ نظر آئے، آسمان میں دیکھوں تو بھی محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ اب اللہ کو دینا ہے قرآن، سنیے، اللہ کو دینا ہے قرآن، تو اللہ نے ڈائریکٹ نہیں دیا، کہا محبوب پہلے تیرے سینے پہ اتار، پہلے تیرے سینے پہ اتاروں گا، پھر تیرے سینے سے منتقل ہو کر، تیرے سینے سے منتقل ہو کر ساری کائنات کے انسانوں کے سینے تک پہنچ جائے گا یہ قرآن۔ اس لیے صاحب یاد رکھے، چاند ہو، تارے ہو، ستارے ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، اگر محمد ہے اصل وجود دو عالم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب صاحب سوال یہ اٹھتا ہے، نبی آ رہے ہیں، سیدہ آمنہ خاتون سے پوچھتے ہیں، سیدہ آپ تو میرے سرکار کی والدہ ہے، آپ یہ بتائیں میرے اور آپ کے آقا نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اللہ صاحبو، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ماں کی ممتا تلاشتے ہیں، ماں کا پیار تلاشتے ہیں، ماں کی محبت تلاشتے ہیں، ماں کے دودھ کا قطرہ تلاشتے ہیں، مگر سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے جب میرے لختے جگر اس خاکے گیتی پر تشریف لائے، میرے جسم سے ایک نور نکلا اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ کہتی ہے میں اپنے شہزادے کو تلاشنے لگی، میرے لختے جگر کدھر ہے؟ میری نظر پڑی، میں نے کیا دیکھا؟ میرے شہزادے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اب دنیا والوں یاد رکھنا، نبی نے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، خدا کی بندگی کی ہے، خدا کی عبادت کی ہے، زمانے کو تک سے وفا دیا ہے۔ قرآن نے نبی کی ولادت کے 40 سال بعد اعلان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر آمنہ کے لال نے پیدا ہوتے ہی ساری دنیا کو پیغام سنا دیا، اے دنیا والو تمہاری زندگی کا مقصد ایک ہے کہ ایک خدا کی عبادت کی۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی، ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع بولے خدا کی، زور سے بولے خدا کی عبادت۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ہم جلوس میں جاتے ہیں، ہم میلاد میں جاتے ہیں، ہم صاحب بہت جگہوں پہ جاتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھ دے نبی پیدا کب ہوئے تھے تو تاریخ یاد رکھیے 20 اپریل 571 عیسوی۔ کیا زور سے پورا مجمع بولے 20 اپریل 571 عیسوی۔ اسے لکھ کر کے آپ اپنے موبائل میں لگا لیں تاکہ یاد رہے کہ ہمارے نبی اس خاکے گیتی پہ تشریف کب لے آئے۔ اب دوسری بات کوئی آپ سے پوچھے، نبی نے پیدا ہونے کے بعد دنیا کو پہلا میسج اور پیغام کیا دیا؟ تو
बता दीजिए नबी ने पैदा होने के बाद जो पहला मैसेज पैगाम दिया वो खुदा की बंदगी का दिया है, खुदा की इबादत का दिया है, एक खुदा की बारगाह में सजदा का दिया है। अब मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आज आप छोटे छोटे बच्चों से पूछिए, अब ये बच्चा बैठा है, आप छोटे छोटे बच्चों से पूछिए शहजादे जरा कुछ याद हो तो हमें सुना दो, तो आजकल बच्चे फौरन सुनाते हैं मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा शहजादे ये बताओ मछली का पानी से रिश्ता कैसा है? कहा मौलाना साहब नहीं मालूम, मछली को अगर पानी से अलग कर दीजिए तो मछली मर जाएगी, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा। मैंने कहा ताज्जुब की बात है, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां ये तो जान गए कि मछली को जिंदा रहने के लिए पानी में रहना जरूरी है, मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने मस्जिद नबवी शरीफ के मेंबर से ऐलान किया अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने आमदे हुजूर, जश्ने आमदे हुजूर अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहब किबला। नारे तकबीर, सरजमीने संग्रामपुर दर्जी टोला। नारे तकबीर। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप अपने बच्चों को मोटू पतलू का किस्सा बहुत सुनाते हैं, न जाने क्या क्या सुनाते हैं, मगर कभी अपने बच्चों से कहिए बेटा जिस नबी के मिलाद में आए हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की उम्मती हो, वो नबी तो पैदा होते ही नमाज पढ़ रहे हैं। बेटा तुम 18 साल का हो गया नमाज नहीं पढ़ता, मेरी माँ बहन तू 40-50 साल की हो गई नमाज नहीं पढ़ती, तेरी गोद में बेटे पोते पोती हो गए तू नमाजों से दूर रहती है। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों याद रखना, एक है मिलाद मनाना और एक है मिलाद वाले को मनाना। मिलाद मनाने के लिए आलिम की जरूरत है, मिलाद मनाने के लिए स्टेज की जरूरत है, मिलाद मनाने के लिए साहब उलमा की जरूरत है, मिलाद मनाने के लिए टेंट की जरूरत है, मगर मिलाद वाले को मनाने के लिए समझ रहे ना मेरी बात, मिलाद वाले को मनाने के लिए आपने अपने खतीब व इमाम काली इसराइल साहब की दावत की, कहा हजरत मेरे घर आ रहे हैं, अच्छा है आज खाना उनकी पसंद का बनाएंगे ताकि वो खुश हो जाए, आज साहब आज हमारे घर मामला उनकी पसंद का होगा ताकि वो खुश हो जाए। आपके घर आपके पीर साहब आए, आप सोचते हैं काम वो करो जिससे पीर साहब खुश हो जाए। मेरी कौम के मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान मिलाद तो हमने बहुत मना लिए, बेशक मनाओ, मनाना चाहिए। कुरान ने कहा कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जब खुदा का फजल और उसकी रहमत का नुज़ूल हो तो तुम खुशियां से बताओ। मिलाद तो हमने बहुत मना लिए, कभी जिंदगी में ये भी सोचो मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाना है, आमिना के लाल को भी मनाना है। तो कितने लोग हैं जो नबी को मनाना चाहते हैं? हाथ उठा करके बोले कितने लोग हैं जो नबी को मनाना चाहते हैं? अब हाथ नीचे रख लीजिए। नबी को मनाने के लिए नबी के इखलाक को मानना होगा, नबी की बातों को मानना होगा, नबी के गुफ्तार को मानना होगा, नबी के फरमान को मानना होगा। नबी ने फरमाया मोमिन का झगड़ा 3 दिन से ज्यादा, अरे बोलिए 3 दिन से ज्यादा चलता है क्या? हाथ उठाकर बोल दे 3 दिन से ज्यादा नहीं चलता। मगर आज तो मुसलमान कई साल से लड़ रहा है साहब, एक बस्ती में बाप का इंतकाल मगर जाने को तैयार नहीं है। ये कौन सा झगड़ा आपने कर लिया है? आप नबी को राजी करने के लिए नबी की बात को मानिए, मगर जरा ठहरिए, मैं बताना चाहूंगा सरकार आपको क्या पसंद है, हम वो करेंगे जो नबी को पसंद है। आप कहेंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक मिलेगी।
नबी तुमसे खुश हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, सिर्फ मिलाद मनाइएगा, नबी एक रात याद आएंगे। सिर्फ मिलाद मनाइएगा, नबी एक दिन याद आएंगे। सिर्फ जुलूस निकालिएगा, नबी एक दिन याद आएंगे। मगर नमाजी बन जाइएगा, फज्र पढ़िएगा, नबी याद आएंगे। ज़ोहर पढ़िएगा, नबी याद आएंगे। असर पढ़िएगा, नबी याद आएंगे। मगरिब पढ़िएगा, नबी याद आएंगे। इशा पढ़िएगा, नबी याद आएंगे। जब कभी नमाज के लिए खड़े हो जाइएगा, नबी याद आएंगे। इसलिए कि कोई ऐसी नमाज नहीं कि नमाज में सजदा हो और आमिना के लाल पे दुरूद सलाम नहीं हो। आजान भी बता रही है, ऐ लोगों, आजान में खुदा के साथ नबी का नाम है और नमाज में भी सजदे के साथ नबी पे दुरूद सलाम। इसलिए मैं चाहता हूँ हम साहब ज्यादा नहीं, कम से कम आका की एक सुन्नत। आका फरमाते हैं, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, बता तू कब नमाजी बनेगी? ऐ मेरे बूढ़े बड़े बुजुर्गों, आप कब नमाजी बनोगे? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बताओ तुम कब नमाजी बनोगे? इंसान जब नमाजी बन जाता है, गुनाह की आदत छूट जाती है। इंसान जब नमाजी बन जाता है, बेहयाई बुराई से दूर हो जाता है। इंसान जब नमाजी बन जाता है तो आपस में एक दूसरे से मुलाकात होती है। इंसान का अकीदा निखरता है, मिजाज निखरता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, मैं जबरदस्ती नहीं कहूँगा, मगर मैं आपसे जरूर कहूँगा, ऐ संग्रामपुर के जिंदा मर्द, बच्चे, बूढ़े, नौजवानों, क्या आज ये नहीं कह सकते हो कि इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे? अरे बोले इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे। बोले जोर से, इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे। मैं जबरदस्ती नहीं कहता, लेकिन ये तो जरूर कोशिश करता हूँ, जब यहाँ से वापिस जाओ तो मेरी बेटियां नमाज पढ़े, यहाँ से वापिस जाओ मेरी माओ के मुसल्ले बिछे। याद रखना, मजार शरीफ पर जाना जरूरी नहीं, याद रखना खूब जिंदगी में, मगर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना जरूरी है। तेरा जुलूस में जाना जरूरी नहीं, मगर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना जरूरी है। ऐ मेरी कौम की माँ, तू मजार पर जाकर दिन रात गुजार देती है और मुसल्ला पे तुम 5 मिनट नहीं गुजार पाती है। जिस दिन तूने मुसल्ला बिछाना शुरू कर दिया, तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनना, इजाजत है? बोल, अरे बोलिए, बोलूं? मैं सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ। मामला इतना वसी है कि बताने की जरूरत नहीं है। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। अच्छा साहब सुनिए, मेरी कौम की माओ सुनो, दुनिया की सबसे हसीन मर्द औरत की जोड़ी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सैयदा खदीजतुल कुबरा है ना, सैयदा खदीजतुल कुबरा है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की एक सीरत बयान करूँ। सुनेंगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोलते सुभान अल्लाह। आपको सुनकर ये कहना पड़ेगा कि गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। अब साहब सुने जरा गौर से, सुने गौर से। हमारी रातें कट जाती हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम कभी अपनी बीवियों से नबी की सीरत बयान भी करते हैं क्या? हम अपने घर वालों से कभी नबी की सीरत बयान करते भी हैं क्या? आका का इखलाक कैसा था, आका का बर्ताव कैसा था, आका की जिंदगी कैसी थी? सैयदा खदीजतुल कुबरा एक बेवा औरत थी। ऐसे दौर में जब बेवा को मनहूस समझा जाता था, अभागा समझाता जाता था, भारत की सरजमी पर एक बेवा को उसके शवहर की चिता पर जला दिया जाता था,
रखा, मगर आमिना के लाल ने 25 साल की उम्र में सैयदा खदीजतुल कुबरा जैसी 40 साला बेवा औरत से निकाह करके जमाने को पैगाम दिया कि ये बेवा अभागन नहीं बल्कि नबी ने उसे सुहागन बना दिया। नबी ने उसे सुहागन बना दिया है। इसलिए याद रखिएगा, आज जो समाज में बहुत बड़ा मामला चल रहा है, आपको भी जानना चाहिए। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है, कितने मामलात बढ़ रहे हैं, ये सब क्यों? तालीम की कमी की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से। आज जो समाज में बेहयाई और बुराई फैली है, उसकी बड़ी वजह है आज हमारी बेटियों के पास तालीम नहीं है, आज हमारे पास तालीम नहीं है। तालीम का मकसद सिर्फ मैट्रिक की डिग्रियां नहीं है, तालीम का मकसद ये है कि इंसान के अंदर अच्छाई आए, इंसान ये जाने हलाल क्या है हराम क्या है, इंसान को पता हो अच्छा क्या है बुरा क्या है। जिसकी एक छोटी मिसाल पहले सुनिए। सैयदा आमिना खातून ने तो फरमा दिया, नबी ने सजदे में सर रखा, मगर सैयदा दाई हलीमा से पूछते हैं, सैयदा आप बताएं मेरे नबी का किरदार कैसा है, मेरे नबी का इखलाक कैसा है। सैयदा दाई हलीमा कहती है, ऐ दुनिया वालों जानना चाहते हो, जब मैं आमिना के लाल को लेने के लिए उनके घर गई, जब आका को देखी तो देखती रह गई, आका को देखी तो देखती रह गई। सैयदा क्या हुआ? कहती है मेरा काम ही था बच्चों को पालना, मेरा काम ही था बच्चों को देखना, मगर मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं आमिना के लाल से ज्यादा हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा। कहा फिर क्या हुआ? कहती है मैं आका के करीब गई, देखी आंखें बंद है, आका आराम कर रहे हैं, मैंने सोचा बेदार करूं, मगर आका की आंखें खुल गई, आका करीब मुस्कुरा पड़े, जो ही मुस्कुराए दंदाने मुबारक खुला और एक नूर निकला जो जमीन से आसमान तक पहुंच गया। उसे यूं कहिए, यूं मुस्कुराए जान की कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है, मेरा हाल ये था कि मैं बहुत गरीब थी, मागौर कहतसाली का जमाना था, मेरे पास इतनी मालो दौलत नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को पेट भरकर खिला पाती, मेरे जानवर मोटे ताजे हो पाते। हाल ये था मेरे सीने में दूध नहीं हो पाता था, मेरे पास मेरा एक बेटा था, रात बड़ी मुश्किल से कटती थी, रो रो करके गुजार देता था। ऐसे आलम में जब मैंने नबी को गोद में लिया तो पहली बरकत ये हुई कि नबी के कदमे नाज की बरकत से मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। मैंने आका करीम को गोद में लिया, लेकर पहले आका को दाई जानिब दूध पिलाया, आका ने जी भरकर पिया, मैंने सोचा बाई जानिब भी पिला लूं, क्योंकि औरतों का मिजाज है, मगर कहती है सैयदा दाई हलीमा, जो ही मैंने आका को दूसरी जानिब का दूध दिया, आका ने पीने से इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कि नबी को पता है, नबी को पता है कि इस गोद में मुझसे पहले भी एक शहजादे मौजूद है। हज़रत सैयदा दाई हलीमा कहती है कि जब तक आका दूध पीते रहे, रोजाना एक जानिब का दूध पीते और दूसरी जानिब का दूध अपने रजाई भाई के लिए छोड़ देते, मेरे रखते जिगर के लिए छोड़ देते। मेरी कौम के शहजादों, जरा ईमानदारी से बताओ आपने क्या समझा है? हम आप ये समझते हैं ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती, ये सारा खाना मुझे नसीब हो जाता, ये सारी हवेली मेरी हो जाती, ये सब कुछ जो मानो जब है ये सब मुझे मिल जाता। मगर अल्लाह के नबी सैयदा दाई हलीमा की गोद में बैठकर जमाने को इंसाफ का पैगाम दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह तुझे मालो जर दे तो अकेले न इस्तेमाल करना, अल्लाह अगर तुझे कुछ नेमतें अता करे तो उसे अकेले इस्तेमाल न करना, अल्लाह अगर तुझे एक प्याला दूध दे आधा खुद पीना, आधा अपने भाई को पिला देना, खुदा अगर तुझे एक रोटी दे आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी भाई को खिला देना। मगर आज अफसोस ये भाई खिलाएगा
क्या, ये तो भाई से बात करना नहीं चाहता, ये तो भाई से गुफ्तगू करना नहीं चाहता। एक माँ के सीने से दूध पीने वाले 4 भाई जवान होने के बाद एक दस्तरखान पे बैठ करके खाना नहीं खा सकते। साहब एक बाप के मकान में रहने वाले 5 भाई जवान होने के बाद कभी एक मकान में नहीं रह सकते। हाल इतना बुरा, माँ का कलेजा छलनी कर दिया, भाइयों में आपस में ना इत्तफाकी हो गई। हमने अपनी जिंदगी को ही सब कुछ समझ लिया, मगर है मुसलमानों याद रखना, हम आका के मिलाद की महफिल में आए हैं। आका करीम फरमाते हैं तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? कहा जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। नारे रिसालत, जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। मेरी कौम के शहजादों, अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया, जो खुद खाओ अपने भाई को खिलाओ, जैसा पहनो अपने भाई को पहनाओ। ऐसा नहीं कि हमारे लिए एयर कंडीशन कमरा हो और भाई फटीचर जिंदगी गुजार रहा हो। आज हो तो यही रहा है, आज थोड़ी सी दौलत हो गई, साहब हम बदल गए, हमारा किरदार बदल गया। याद रखना, दुनिया में तकब्बुर सबसे बुरी चीज है, चाहे वो दौलत का तकब्बुर हो, वो इल्म का तकब्बुर हो, खानदान का तकब्बुर हो, हुस्नो जमाल का तकब्बुर हो। याद रखना, ये जवानी ढलने वाली है, ये दौलत खत्म हो जाने वाली है, जिंदे को मौत की आगोश में जाना है। फिर तकब्बुर किस बात का, फिर गुरूर किस बात का? इसलिए दिल को नर्म कीजिए और आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए। भाई रूठा है तो मना लेना है, बहन रूठी है तो मना लेना है, पड़ोसी नाराज है तो मना लेना है, बाप नाराज है तो उन्हें राजी करना है। साहब याद रखिए, हम आज माशरा ये हो गया, दिल भाई का दुखाते हैं, माफी जाकर मस्जिद में मांगते हैं। साहब दिल मौला दिल अपने चचा का दुखाते हैं और माफी जाकर खानकाह में पीर साहब से मांगते हैं। नहीं, जब तक तेरा भाई माफ नहीं करेगा, अल्लाह उसके रसूल तुझे भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए गौर से याद रखना, आज थोड़ी सी दौलत हो गई, भाई अलग हो गया। माशाल्लाह, जरा पीछे भी कैमरा घुमा लीजिए, आपसे बोल रहा हूँ, जरा पीछे भी कैमरा घुमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नींद आ रही है ना, क्या कीजिएगा, लोग बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं। ऐसे भी जिसे नींद नहीं आती हो ना, तो अल्लामा कमरुद्दीन बुलबुले बंगाल नईम अली रहमा कहा करते थे, मैंने बचपन में उनकी तकरीर सुनी, कहा करते थे कि जिसे नींद नहीं आती हो और दवा खा के भी नींद नहीं आती हो, उसे जलसे में लेकर के चले आइए, इंशाअल्लाह 12 बजने से पहले उसे नींद आ जाए। नींद आ रही है, माशाअल्लाह, सोना भी चाहिए और जागना भी चाहिए मेरे दोस्त। इसलिए जरा पूरा मजमा हाथ उठाइए और हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। अब गौर से सुनिएगा साहब, हमने तो यही समझा है जो कुछ है ये सब